The impugned judgment of the High Court and the order of the ECP are set aside. During the hearing, it transpired that a number of candidates had submitted their nomination papers with a declaration on oath that they belonged to PTI, supported by an affiliation certificate of the said party. But some did not submit affiliation certificates of PTI. They are members of national and respective provincial assemblies affiliated with PTI. The ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. It is important to mention here that neither the PTI nor any candidate affiliated with PTI approached either this court before or during the hearing of these proceedings or the High Court to challenge the decision of the ECP, declaring them as independents. However, in view of the fact that the appeal and the petition are a continuation of election proceedings before the ECP, we can look into the vagaries of the decision of the ECP in the light of the provisions of Article 51D and E of the Constitution, read with Sections 66, 67 and 104 of the Elections Act 2017 to safeguard the interest of women and non-Muslims. As a consequence whereof, the candidates who had submitted their nomination papers and or affiliation certificates by the last date of withdrawal of the nomination papers declaring that they belong to PTI and had not filed a document showing affiliation with another political party should have been treated as the parliamentary party of PTI. But needful was not done by the ECP. Consequently, the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserve seats to such extent that ECP should recalculate and reallocate the reserve seat amongst the political parties, including the PTI, as provided by Article 51(6)(d) and E of the Constitution. The candidates who had submitted the nominations papers by 24 December 2023, which was the last date of submission of nomination papers, and had declared themselves either as the independent candidates or left blank the relevant column in the nomination papers declaration and were elected, shall be considered to be independents. SIC is a registered political party, and every independent member of Parliament and the provincial assemblies has a right to join it. All those who joined the SIC are presumed to have done so out of their own free will. None of them claim to have joined SIC because of any misunderstanding of any judgment, the law, compulsion, coercion, or undue influence, and it is not for this court to presume otherwise. We must ensure that words are not read into the Constitution, nor to ascribe artificial meaning to commonly understood words. We must also abide by validly enacted laws and must not do anything either to hinder or to facilitate a political party by ignoring the law's mandate. I think this concludes today's proceedings. Thank you, everyone. Thank you, Senator. Thank you so very much. सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कालअदम करार दे दिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार। फैसला आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला 8 की अक्सरियत का है। चीफ जस्टिस का कहना था कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 8-5 के तनासुब से फैसला है। अहम खबर आपको दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह को फैसला सुनाने की हिदायत की। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। आपको बताएं कि फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। फैसले में लिखा गया कि पीटीआई ख़वातीन नशिस्तों की अहल करार है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद वहीद ने अक्सरियती फैसला दिया। आपको बताएं कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अक्सरियती फैसले में, आपको बताएं कि ये भी अक्सरियती फैसले में शामिल हैं। जबकि जस्टिस काजी फाजिसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन ने पीटीआई की दरख्वास्तों की मुखालफत की। आपको बताएं कि बाकी 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो इसी जमात के उम्मीदवार थे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फैसला 8-5 के तनासुब से आया है। फैसले में कहा गया कि 80 अरकान में से 39 तहरीक इंसाफ के थे। फैसले में कहा गया कि बाकी 41 अरकान जो है 15 दिन में वाज़ेह करें कि उन्होंने किस जमात में शमूलियत इख्तियार की। इस हवाले से इस्लामाबाद से मज़ीद अपडेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कैपिटल टीवी के नुमाइंदे निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, आप कमरा अदालत में मौजूद थे, सारी अदालती कार्रवाई आपने देखी, फैसला जो सुनाया जा रहा था आप वहाँ पर मौजूद थे। हमें बताएं कि क्या मामलात रहे। फैसला वैसे तो आ चुका है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्ते के लिए अहल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप हमें बताएं कि वहाँ क्या मनाजिर थे। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ और मखसूस नशिस्तों का जो मामला था उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो पाकिस्तान है उसने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है फैसला कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि 8 की अक्सरियत से जारी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना है कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। 8-5 के तनासुब से ये फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जस्टिस मंसूर अली शाह को फैसला पढ़ने की जो है आज हिदायत की गई और इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो ऑर्डर था वो भी आज कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। फैसले में कहा गया है आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना था कि इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। इसी तरह जो आज का फैसला है वो अक्सरियती फैसला। फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक जो है वो खत्म नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अक्सरियती फैसला दिया है। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरखास्तों की मुखालफत की है। फैसले पर जस्टिस याहिया अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट है वो भी सामने आया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान ने दरखास्तों की मुखालफत की है और कहा है कि बाकी 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वो इसी सियासी जमात के जो उम्मीदवार हैं। इस वक्त जो इंतखाबी इस वक्त जो ये फैसला है वो 5-8 से अक्सरियती फैसला जो है वो दिया जा चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद है और भरपूर जो इस वक्त नारेबाजी है इमरान खान के हक में वो इस वक्त हो रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो मुबारकबाद सब वो एक दूसरे को दे रहे हैं। यहाँ पर आज का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ने जो है मुश्तरका तौर पर बैठ कर दिया है। कल इस पर मुशावरत मुकम्मल हुई थी, 2 दिन तक इस पर मुशावरत होती रही और आज 12 बजे का वक्त दिया गया था। उसके बाद अब ये फैसला 5-8 के अक्सरियत से जो है वो सुना दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद। नाज़रीन, आपको सूरत हाल हम बताते चलें कि सुप्रीम